یہ حکومت شاید تاریخ کی ان حکومتوں میں شامل ہو چکی ہے جنہوں نے عوام کو ریلیف دینے کے بجائے ان کی سانسوں تک پر ٹیکس لگانے کی روایت ڈال دی۔ کرپشن کرپشن کرپشن، ریڈ ٹیپزم ریڈ ٹیپزم ریڈ ٹیپزم۔ کین یو امیجن کہ کسی ملکوں کے اندر جہاں پر 80% پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے اور صرف سپروائزری رول گورنمنٹ کا ہونا چاہیے، وہاں پر حالت یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن تو ہے نہیں، پیٹرولیم لیوی اب صرف ایک ٹیکس نہیں رہی بلکہ یہ حکومت کی اس پالیسی کی علامت بن چکی ہے جس میں عوام کو چلتی پھرتی ATM مشینیں سمجھ لی۔ میں ہمیشہ یہ عرض کرتا تھا آپ کو اور آج بھی عرض کر رہا ہوں، اور ایک پروگرام میں مجھ سے کہا گیا اور میں نے ان کو بتایا کہ میں اب بھی ٹارگیٹڈ سبسڈی کے حق میں، وہ ملک نہیں ہے جہاں سے آپ سبسڈی لے لیں۔ حکومت نے خود پارلیمنٹ کو تحریری طور پہ بتایا کہ گزشتہ 9 ماہ یعنی جولائی 2025 سے مارچ 2026 تک صرف پیٹرولیم لیوی کی مد میں عوام سے 1205.18 ارب روپے وصول کیے جا چکے۔ یہاں کے کرپٹ لوگوں کو لگام ڈالتے، آپ نہ ڈال سکے، آپ نہیں کر سکے، آپ سے نہیں ہو پایا، آپ سے نہیں ہوگا، آپ نہیں کر سکے، صرف سودی کاروبار کر رہے ہیں، سود سود سود، اور آیتیں سناتے ہیں جنرل صاحب آپ، لیکن آپ سود لے رہے ہیں۔ یہ جو ڈیفر پیمنٹ ہوتی ہے جو آئل کی، یہ کیا ہے؟ اور جو آپ قرض لیتے ہیں اس پر سود دیتے ہیں، اور پھر آپ جو ونڈو ڈریسنگ لیتے ہیں یہ بھی سود ہے۔ تو جنرل صاحب آپ تو آیات سناتے ہیں قرآن مجید کی اور اپنے سود کے متعلق نہیں سنا۔ میں تو مارگیج کے بارے میں بڑی لبرل اپروچ رکھتا ہوں، لیکن آپ تو بڑے شدید قسم کے مذہبی آدمی ہیں، آپ کو یہ سود نظر نہیں آ رہا۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسن جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں دی وائٹ مینیفیسٹو۔ یہ حکومت شاید تاریخ کی ان حکومتوں میں شامل ہو چکی ہے جنہوں نے عوام کو ریلیف دینے کے بجائے ان کی سانسوں تک پر ٹیکس لگانے کی روایت ڈال دی ہے۔ کرپشن کرپشن کرپشن، ریڈ ٹیپزم ریڈ ٹیپزم ریڈ ٹیپزم، ہر جگہ ہر ادارہ کرپشن سے بھر چکا ہے۔ آپ یہ کام نہیں کرتے اور کرپشن سے زیادہ اور معاملہ یہ بن چکا ہے، اتنی نااہلی ہو چکی کہ پالیسی یہاں تک پہنچ چکی کہ اگر کوئی پرائیویٹ بزنس بھی کرنا چاہے تو آپ کی پرسنٹیج جو 10% آف دا ان پٹ آپ کی پرائیویٹائزیشن کی تھی اب 5% رہ گئی۔ کین یو امیجن کہ کسی ملکوں کے اندر جہاں پر 80% پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے اور صرف سپروائزری رول گورنمنٹ کا ہونا چاہیے، وہاں پر حالت یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن تو ہے نہیں، اور 87% آف دا اسٹیچوٹری ریگولیٹری اتھارٹی یعنی گورنمنٹ کے یہ جو بیوروکریٹس بیٹھے ہیں ان کی جو ہے ان کے سگنیچر کی جو ہراسمنٹ ہے جو پرائیویٹ گروپس کو کرتے ہیں ان کے بغیر یہ نہیں ہو سکتی۔ نہ چائنا سے وہ کچھ منگوا سکتے ہیں، نہ چائنا کی انڈسٹری لگ سکتی ہے، نہ چائنا کو کچھ بیچ سکتے ہیں، نہ ہی آپ نے کوئی پالیسی بنائی۔ سی پیک برباد ہو گیا، لیکن آپ اگر B2B یعنی بزنس ٹو بزنس بھی کرنا چاہیں تو اس کے اوپر کچھ نہیں ہے۔ انسٹیٹیوشنل ایکوٹی کو بھی ڈیولپ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ پراپر طریقے سے نہیں کر سکتے۔ ایک آدھ کوئی یونٹ چل جائے تو چل جائے، لیکن اس کا بھی کوئی بڑا بھاری ہاتھ ہو تو وہ تب چل سکتا ہے، ورنہ نہیں چل سکتا۔ حکومت اپنی ناکام پالیسی یعنی ناکام معاشی پالیسی کا بوجھ براہ راست تمام کی جیبوں پہ ڈال رہی ہے۔ پیٹرولیم لیوی اب صرف ایک ٹیکس نہیں رہی بلکہ یہ حکومت کی اس پالیسی کی علامت بن چکی ہے جس میں عوام کو چلتی پھرتی ATM مشینیں سمجھ لیا گیا۔ میں ہمیشہ یہ عرض کرتا تھا آپ کو اور آج بھی عرض کر رہا ہوں، اور ایک پروگرام میں مجھ سے کہا گیا اور میں نے ان کو بتایا کہ میں اب بھی ٹارگیٹڈ سبسڈی کے حق میں، کہ وہ ملک نہیں ہے جہاں سے آپ سبسڈی لے لیں گے۔ IMF کی ہر ڈکٹیشن کو آپ مان رہے ہیں، آپ کو IMF سے فائدہ کتنا ہو رہا ہے آپ کو یہ دیکھنا ہے، لیکن میں ٹارگیٹڈ سبسڈی کے حق میں ہوں۔ مجھے اگر ایگریکلچر چلانا ہے یا مجھے اپنی زراعت چلانی ہے تو مجھے ٹارگیٹڈ سبسڈی دینی ہوگی، ادروائز یہ نہیں چلے گا۔ لیکن بہرحال اگر اس کے اندر مافیا پھر حکومت کے ہوں گے، یہی چند خاندان کے ہوں گے یا ایگریگیٹرز ہوں گے تو پھر یہ گندم بھی برباد کریں گے یا آپ کی کاٹن بھی برباد کریں گے۔ حکومت نے خود پارلیمنٹ کو تحریری طور پہ بتایا کہ گزشتہ 9 ماہ یعنی جولائی 2025 سے مارچ 2026 تک صرف پیٹرولیم لیوی کی مد میں عوام سے 1205.18 ارب روپے وصول کیے جا چکے۔ اگر اس رقم کو 9 ماہ پر تقسیم کیا جائے تو اوسطاً ہر ماہ 133 یعنی 133.9 ارب روپے عوام کی جیبوں سے نکلوائے گئے، یعنی ہر مہینے عوام پر ایک نیا معاشی حملہ کیا گیا۔ اگر اسی رفتار سے وصولیاں جاری رہی، رواں مالی سال کے اختتام تک حکومت صرف پیٹرولیم لیوی کے نام پر 1607 ارب روپے عوام سے وصول کر چکی ہوگی۔ اچھا، IPPs کا میٹر تو ہو گیا، ان کو تو آپ
पैसे फायदे दे रहे हो, कैप्टिव पावर प्लांट को भी दे रहे हो, इंडस्ट्री लग नहीं रही, इंडस्ट्री के लिए जो बिजलियां दी वो भी आपको आईपीपी की मद में बेच रहे हो, तो कौन सा इक़्तिदार करना है आप लोगों ने? फिर 28वीं तरमीम से आप किसको फायदा देने चाह रहे हो? और आपके पीछे जो आपकी हुकूमतों को, यानी खास तौर पर डिक्टेटरशिप जब आती है तो उसके पीछे अमेरिका होता है, लेकिन आपकी अलाइनमेंट का तो पता चल गया, अमेरिका तो कमजोर हो गया और अब जो है वो चाइना की सरपरस्ती दुनिया में चलेगी और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चलेगा और फिर करप्ट हुकूमतें नहीं चल पाएंगी। तो फिर अगर जनरल साहब सदर बन गए तो फिर ये तो सारा करप्ट निजाम हो तो डिक्टेटर चलता है, और अगर करप्ट निजाम ना हो तो डिक्टेटर नहीं चलता। तो किस तरह चलाएंगे आप? आपका सवाल, आप अगर आप करना कुछ चाहते थे तो आप जो है यहां के करप्ट लोगों को लगाम डालते, आप ना डाल सके, आप नहीं कर सके, आपसे नहीं हो पाया, आपसे नहीं होगा, आप नहीं कर सकेंगे। यही अहम बात यह है कि ये सिर्फ पेट्रोलियम नेवी का आप मसला हल नहीं कर सके तो आपने बाकी मसले हल कैसे करने हैं? आपकी यही लोग तो हैं। आप आईपीपीएस वालों का मसला हल कर दे, मैं आपको मान लूंगा, आप नहीं कर सकते। इसमें क्लाइमेट सपोर्ट लेवी शामिल नहीं है। हुकूमत ने बजट में पेट्रोलियम लेवी का जो हदफ रखा था वो 1468 रुपए था। अच्छा, अब अगर फौज ये कहेगी कि हमारा काम मईशत नहीं है तो एसआईएफसी आपने क्यों शुरू किया? सवाल तो बहुत अच्छा है। अब ये जवाब आपको देना है। और फिर आप वो लगाते क्यों हैं जो कि आपको नहीं चाहिए होते? फिर आपने क्यों आईएमएफ के कहने पे इसको बैंकर को रखा है? और बैंकर जो है वो रॉकशाइल्ड को बात करता है, करे यहूदियों से बात करे और यहूदियों का पैसा ले। आप सिर्फ सूदी कारोबार कर रहे हैं, सूद सूद सूद, और आयतें सुनाते हैं जनरल साहब आप, लेकिन आप सूद ले रहे हैं। ये जो डेफर पेमेंट होती है जो ऑयल की, ये क्या है? और जो आप कर्ज लेते हैं उस पर सूद देते हैं, और फिर आप जो विंडो ड्रेसिंग लेते हैं ये भी सूद है। तो जनरल साहब आप तो आयात सुनाते हैं कुरान मजीद की और आपने सूद के मुतल्लिक नहीं सुना। मैं तो मॉर्गेज के बारे में मैं बड़ी लिबरल अप्रोच रखता हूं, लेकिन आप तो बड़े शदीद किस्म के मजहबी आदमी हैं, आपको ये सूद नजर नहीं आ रहा। आप मुसलसल पूरी दुनिया से सूद के ऊपर कर्जे लेते हैं, सूद देते हैं, सूद ले रहे हैं, सूद देते हैं, सूद लेते हैं। मगर आप अंदाजा यह है कि हुकूमत इस हदफ से भी तकरीबन 150 अरब रुपए से ज्यादा वसूलती रहेगी। यानी अवाम की जेबों पर जो बोझ बढ़ना सिर्फ मजबूरी नहीं बल्कि बाकायदा हुकूमती मनसूबाबंदी बताया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से हर माह की वसूलियों की अदाद शुमार भी सूरत हाल की संगीनी वाज़ेह करते हैं। जुलाई 2025 में 145 अरब रुपए, अगस्त में 115 अरब रुपए, सितंबर में 111.45 अरब रुपए, अक्टूबर में 142 अरब रुपए, नवंबर में 51.10 अरब रुपए, दिसंबर में 157.64 अरब रुपए, जनवरी 2026 में 124.70 अरब रुपए, फरवरी में 120.54 अरब रुपए, जबकि मार्च में 137 अरब रुपए वसूल किए गए। यह अदाद सिर्फ नंबर नहीं है बल्कि उस माशी दबाव की तस्वीर है जिसका सामना हर वो शहरी कर रहा है जो मोटरसाइकिल पे पेट्रोल डलवाता है। आपने देखा नहीं है कि क्या क्या गलीज गालियां लोग दे रहे हैं, और वो सही दे रहे हैं। आपका इतना पेट्रोल बढ़ता नहीं है जितना आप बढ़ा रहे हैं। लेवी 130 पर जाती है, 50 पर जाती है। वजह आईएमएफ तो आपको 60 का कह रहा था। ट्रांसपोर्ट का किराया देता है या महंगाई के बायस अशिया जरूरिया की बढ़ती कीमतें बर्दाश्त कर रहा है। ये सारी अवाम है। अगर मुतवक्का 1607 अरब रुपए की पेट्रोलियम लेवी में क्लाइमेट सपोर्ट लेवी की मुतवक्का 51 अरब रुपए भी शामिल कर लिए जाएं तो 30 जून 2026 तक अवाम से पेट्रोलियम मसनूआत पर मजमूई तौर पर 1658 अरब रुपए वसूल किए जा चुके होंगे। आपने तो अच्छा छक्का लगा लिया, पैसा ही पैसा। पंजाब तो खा रहा है, पंजाब तो खाता चला जा रहा है। पंजाब ने खा खा के बर्बाद कर दिया सबको। पंजाब ने तो वो खाया है। पंजाब की हुकूमत खाती चली जा रही है, खाती चली जा रही है। एक तो गवर्नमेंट का साइज बड़ा, फिर सूबे बड़े, फिर एमपीए बड़े, एमएनए बड़े, फिर फलां फलां, तो चौधरी साहब तो खाते चले जाए। इस वजह से हुकूमत अब तक खुद 1234.34 अरब रुपए वसूल करने का एतराफ कर चुकी है। सवाल यह है कि आखिर इस खतीर रकम का फायदा आवाम को कहां नजर आ रहा है? क्या पेट्रोल सस्ता हुआ? क्या ट्रांसपोर्ट के किराए कम हुए? क्या बिजली के बिलों में कमी आई? क्या आवाम की कुव्वत खरीद बेहतर हुई? जवाब साफ है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। हकीकत यह है कि पाकिस्तान में रियासत की आमदन का बड़ा हिस्सा बराह रास्त इनकम टैक्स से नहीं बल्कि बिलवास्ता टैक्सों से आता है। यानी वो टैक्स जो आवाम बिजली के बिल,
पेट्रोल, डीजल, मोबाइल फोन, अशियाए खुदनोश और रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजों के जरिए खामोशी से अदा करते हैं। माली साल 2024-25 में एफबीआर की मजमूई टैक्स वसूली तकरीबन 93 खरब रुपए रही, जबकि माली साल 2025-26 का हदफ तकरीबन 140 खरब रुपए रखा गया। एफबीआर की अपनी सालाना रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में अब भी तकरीबन निस्फ टैक्स वसूलियां बिलवास्ता टैक्सों से यानी इनडायरेक्ट टैक्सों से होती हैं। माली साल 2024-25 में तकरीबन 49% टैक्स बराह रास्त जबकि 51% इनडायरेक्ट बिलवास्ता टैक्सों की मद में वसूल किया गया। सिर्फ पेट्रोलियम लेवी की मद में हुकूमत माली साल में 2025-26 तकरीबन 14 से 15 खरब रुपए वसूल कर रही है, जबकि बिजली के बिलों में जनरल सेल्स टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स, बिजली ड्यूटी, सरचार्जेस और दीगर मदाद को मिलाकर आवाम से सालाना तकरीबन 20 से 30 खरब रुपए तक बिजली और पेट्रोलियम के जरिए ही आवाम से तकरीबन 35 से 47 खरब रुपए सालाना निकाले जा रहे हैं। अगर पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 24 करोड़ मानी जाए तो सिर्फ इन दो मदाद में हर पाकिस्तानी औसतन सालाना 15,000 से 20,000 रुपए अदा कर रहा है, जबकि 5 अफराद एक आम खानदान पर यह बोझ तकरीबन 1 लाख रुपए सालाना बनता है, और यह सिर्फ बिजली और ईंधन का हिसाब है। इसमें गैस, मोबाइल फोन, अशिया खुर्दनोश, बैंकिंग चार्जेस, कस्टम ड्यूटीज और दीगर बिलवास्ता। अच्छा, बैंकिंग तक तो मैं आता नहीं, किसी दिन बहुत बात मैंने बैंकिंग पे की है। मैं इस पूरे बैंकिंग धंधा आजकल बहुत बड़ा माफिया जो है वो सिर्फ बैंकिंग का है, इस पे मैं बात करूंगा लेकिन आज नहीं करता। लेकिन सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान से पैसा उठा रहा है वो आपके मुल्क के बैंक है, आपकी हुकूमत उसको सूद देती है और आप लेते हैं। जनरल साहब, ये सूद पे आयात आपको नहीं आती क्या? या आपके बैंकिंग सेक्टर सूद लेता है, आपको इस पे आयात नहीं आती? तो ये बाकियों को आप कहते हैं कि मार मार के निचोड़ देंगे, पकड़ पकड़ के मार देंगे, तबाह बर्बाद कर देंगे, ऐसी की तैसी कर देंगे। ये क्यों आपने जो है वो इब्राहिम ट्रौरे लोग पैदा करने? मैं तो नहीं चाहता। मैं तो कहता हूं कि हमेशा सिस्टम के अंदर रह के काम करें। आप अच्छे टेक्नोक्रेट्स क्यों नहीं लेकर आ रहे? लेकिन आप इब्राहिम ट्रौरे पैदा करेंगे। ये कॉलोनियल और खास तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो है वो फौजी कॉलोनियल निजाम को जो है वो उसके खिलाफ एक आवाज उठ रही है जो अभी तक खामोश है, लेकिन उठ जाएगी। आप उसका इंतजार क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कहना पाकिस्तानी टैक्स नहीं देते जमीनी हकैक के मुनाफी है, पाकिस्तानी टैक्स देते हैं। हकीकत यह है कि पाकिस्तान का गरीब मजदूर, किसान, रिक्शा ड्राइवर, दुकानदार, तनख्वाहदार तबका हर रोज हर खरीदारी पर, हर बिल पर, हर लीटर पेट्रोल के साथ टैक्स अदा करता है। बंद हो गए जिन लोगों को आपने अय्याशी कराई थी और जिन लोगों को फंड्स मिलते थे, उन्होंने तो बेईमाना तरीके से लोगों को निकाल दिया। और ये आपका जियो बंद हो गया, आपका सुनो बंद हो गया। उन लोगों ने लोगों को इधर उधर छोटी छोटी जगहों पर भेज दिया, उनसे नहीं बर्दाश्त हो रहा होगा। आप फंड नहीं आ रहे, मुल्क दुश्मन अनासर को भी पैसे चाहिए होते। जियो मुल्क दुश्मन तो है, नवाज शरीफ भी मुल्क दुश्मन है, तो उसका कुछ करें ना आप। लेकिन आपने ये पूरी पाकिस्तान को जियो की खबरों पे रखा, तब आपने बंद नहीं किया। जब आपके खिलाफ हुआ तब बंद किया, जब पाकिस्तान के खिलाफ ये काम करते हैं तब आप बंद नहीं करते। तो जनरल साहब, फिर आप आयात सुनाते हैं, इसके ऊपर क्यों नहीं करते? फर्क सिर्फ यह है कि पाकिस्तान में टैक्स का निजाम इंसाफ पर नहीं है बल्कि मजबूरी पर खड़ा है। यहां अमीर तबका रास्ता निकाल लेता है जबकि सारा बोझ आम आदमी के कंधों पर डाल दिया जाता है। असल मसला सिर्फ टैक्स लेना नहीं है बल्कि टैक्स के बदले आवाम को कुछ ना देना। दुनिया की मुहज्जब ममालिक में आवाम से टैक्स लेकर इन्हें सेहत, तालीम, ट्रांसपोर्ट और बुनियादी सहूलियात फराहम की जाती, मगर यहां सूरत हाल उल्ट है। पाकिस्तान में आवाम से मुसलसल नए नामों पर टैक्स और लेवीज वसूल की जाती हैं, लेकिन बदले में आवाम को टूटी सड़कें, महंगी बिजली, बदतरीन ट्रांसपोर्ट और पंजाब में तमाशे, कॉस्मेटिक तरक्की दिखाते हैं और बाकी नाकिस सेहत का निजाम, बेरोजगारी मिलती। हुकूमत के अखराजात कम नहीं होते, अशराफिया की मराद खत्म नहीं होती, लेकिन आम आदमी की जेब हर बजट में मजीद खाली कर दी जाती। अब आवाम ने जो है वो अपने बच्चों को जो है ब्यूरोक्रेट कहते हैं कि जी हराम खाते हैं, तो अब कहते हैं कि अल्लाह करे मेरा बेटा बड़ा होके जो है वो फौज में जाए और फौज के बाद मौज में होता है और मौज से बाद वो जो है वो सदर बन जाए और मार्शल लॉ लगाता है, यानी सीधा सदर।
یہ ہے پاکستان کا عسکری کلونیل سسٹم. اس نظام کے تحت آپ نے کوئی آسانی نہیں دی تو آیات سنا کر ڈرائے مت. پاکستان کا معاشی نظام برباد ہو چکا ہے. یہ اگر آپ نے جہاد کرنا ہے تو کرپشن کے خلاف تو کریں, ریٹیپزم کے خلاف تو کریں, یہ جو مافیا کے خلاف تو کریں, لیکن وہ مافیا تو اپنے ساتھ بیٹھا رکھا, ان کو آیات نہیں سناتے.